time is yours, and we are ready to listen the voice of God. You are go. Amen. Thank you, Jaslyn. Thank you, everybody. It is an extremely honor to be able to minister the word of God. Amen. Amen. And that is important. All right. Praise God. If you go to, I've preached on this before, but the Holy Spirit showed me something, and many of the new people here haven't heard this particular message anyhow, but there's something that I want to just lift out. So if you go with me to the book of Mark, chapter number 11. पहले ये कलाम मैं कर चुका हूँ, लेकिन पाक रूह ने मुझे आज एक मुख्तलिफ तरीके से, डिफरेंट तरीके से इसमें से कुछ सिखाया जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ. हम देखेंगे मरकुस की इंजील के अंदर जाएंगे, मरकुस की इंजील उसका 11वां बाब. So let's go to Mark chapter number 11, and we'll be reading from verse number 12 there. हम वहां से जो 12वीं आयत है वहां से पढ़ेंगे. मरकुस की इंजील उसका 11वां बाब 12वीं आयत से पढ़ना शुरू करेंगे. All right. I will be reading from the New King James Version, and it says the following. Now, the next day, when they had come out from Bethany, he was hungry. Jesus was hungry. And seeing from afar a fig tree having leaves, he went to see if perhaps he would find something on it. When he came to it, he found nothing but leaves, for it was not the season for figs. In response, Jesus said to it, "Let no one eat fruit from you ever again." And his disciples hear that. So, verse number 15. So they came to Jerusalem. Then Jesus went into the temple, began to drive out those who bought and sold in the temple, and overturned the tables of the money changers and the seats of those who sold doves. And he would not allow anyone to carry wares through the temple. Then he taught, saying to them, "Is it not written, my house shall be called a house of prayer for all nations, but you have made it a den of thieves?" And the scribes and the chief priests heard it and sought how they might destroy him, for they feared him, because all the people, all the people were astonished at his teaching. When evening had come, he went out of the city. Verse 20. Now in the morning, as they passed by, they saw the fig tree dried up from its roots. And Peter, remembering, said to him, "Rabbi, look, the fig tree which you cursed has withered away." So Jesus answered and said to them, "Have faith in God. For surely I say to you, whoever says to this mountain, 'Be removed and be cast into the sea,' and does not doubt in his heart, but believes that those things he say will be done, he will have whatever he asks. Therefore I say to you, whoever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them." Till so far. हम खुदा के कलाम में से देखें मरकस की इंजील 11वां बाब 12 आयत से लेकर 24 आयत तक. खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जब दूसरे दिन वो बैतनिया से निकले तो उसे भूख लगी, और वो दूर से अंजीर का एक दरख्त जिसमें पत्ते थे देखकर गया कि शायद उसमें कुछ पाए, मगर जब उसके पास पहुंचा तो पत्तों के सिवा कुछ न पाया, क्योंकि अंजीर का मौसम ना था. उसने उससे कहा, आइंदा को कोई तुझसे कभी फल न खाए. और उसके शागिर्दों ने सुना. फिर वो यरूशलेम में आए, और यीशु हैकल में दाखिल होकर उनको जो हैकल में खरीद फरोख्त कर रहे थे बाहर निकालने लगा, और सराफों के तख्तों और कबूतर फरोशों की चौकियों को उलट दिया. और उसने किसी को हैकल में से होकर कोई बर्तन ले जाने ना दिया, और अपनी तालीम में उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा कि मेरा घर सब कौमों के लिए दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है. और सरदार काहिन और फक्की ये सुनकर उसके हलाक करने का मौका ढूंढने लगे, क्योंकि उससे डरते थे, इसलिए कि सब लोग उसकी तालीम से हैरान थे. और हर रोज शाम को वो शहर से बाहर जाया करता था. फिर सुबह को जब वो उधर से गुजरे तो उस अंजीर के दरख्त को जड़ तक सूखा हुआ देखा. पतरस को वो बात याद आई और उससे कहने लगा, ए रब्बी, देख, ये अंजीर का दरख्त जिस पर तूने लानत की थी सूख गया. यीशु ने जवाब में उनसे कहा,
खुदा पर ईमान रखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। खुदा के कलाम के पढ़े सुने समझे जाने पर खुदा की बड़ी बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। Okay, sorry, we have to read verse 25 also. Let me read it in English, because this is the main topic actually. And whenever you stand praying, if you have anything against anyone, forgive him, that your Father in heaven may also forgive you your trespasses. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. 25वीं आयत हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज का जो कलाम है मेन उसमें से हम 25वीं आयत में देखने वाले हैं, इसलिए 25वीं आयत देखेंगे। कलाम में क्या लिखा है? और जब कभी तुम खड़े हुए दुआ करते हो, अगर तुम्हें किसी से कुछ शिकायत हो तो उसे माफ करो, ताकि तुम्हारा बाप भी जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह माफ करे। और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हें 26 भी पढ़े, और अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। आमीन। Okay, now this whole passage of scripture has got to do with faith. अब ये जो सारा जो हमने हवाला पढ़ा, आज स्क्रिप्चर पढ़ा भी, ये सारी चीजें जो एक्चुअली ईमान के कंसर्न है, हमारे ये ईमान को डील करती हैं ये सारी चीजें। Now, there's a lot of scriptures here that many times is taken out of context. बहुत दफा जो होता है कि जो हम हवाला जात पढ़ते हैं, कलाम का स्क्रिप्चर्स लेते हैं, वो पूरे कंटेंट्स को नहीं पढ़ते, ऊपर से नीचे को, वो उस वक्त किस वक्त बोलेगे, उस वक्त क्या माहौल था, कौन से लोग थे, लेकिन हम पूरे वो उस चीज को नहीं पढ़ते, बल्कि हम उसमें से एक आयत को कई दफा उठा लेते हैं। And many times we have heard messages on this, that whatever you ask God in faith, God will give to you. और हमने बड़ी दफा ये मैसेज सुना भी होगा, हमने ये बात सुनी भी कि जो कुछ आप खुदा से कहोगे वो खुदा आपको दे देगा। And we go to our prayers and we ask God, give me a car, give me money, give me this, give me that. And then when these things do not come, we get highly disappointed. और हम दुआ में जाते हैं और हम खुदा से कहते हैं कि हमें पैसे दे दो, हमें कार दे दो, ये दे दो, वो दे दो, और जब वो चीजें नहीं मिलती, जब नहीं होता, तो हमारा दिल टूट जाता है। And after that we kind of lose our faith in God, because we think that God does not give to us whatever we ask him, right? उसके बाद हमारा जो ईमान जो है वो कहीं ना कहीं असरअंदाज होता है, हम उस तरह ईमान में नहीं खड़े होते, क्योंकि हमें लगता है कि जो कुछ हमने दुआ में मांगा था खुदा ने हमें वो नहीं दिया। Now I want to just read 23 and then 24 also, because this is the thing that many people are battling with in their life. आज मैं अभी आपके सामने 23 और 24 आयत को पढ़ रहा हूँ, क्योंकि बहुत ये ऐसी एक चीज है जिसमें बहुत सारे लोग अभी भी इस चीज के अंदर एक जंग के माहौल में है, एक उनकी बैटल हो रही है, एक कुश्ती हो रही है रूहानी जो रेल में उसके अंदर। Now we see here that Jesus said to Peter, asking him about the tree that is dried up to the core, wow, you have this tree is withered, it's gone. क्योंकि हम देख रहे हैं, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी, आप अपने माइक बंद करें प्लीज। एक दफा सब लोग अपने माइक की तरफ देखें, अपने माइक बंद कर दें, सब लोग माइक बंद कर दें। पास्टर जी आप नहीं, पास्टर फेडरिक, यू डोंट, आई एम आस्किंग एवरीवन टू म्यूट देयर माइक्स। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। देखिए पतरस ने यीशु से क्या कहा था? यीशु ने से कहा, वाओ रबी उस्ताद, देखो ये जो दरख्त है ये तो जड़ तक सूख गया है, क्योंकि आपने इस पे लानत भेजी थी, कल आपने बोला था, और ये तो जड़ तक सूखा हुआ है। And then Peter was surprised, but the first thing that Jesus answered Peter is, have faith in God.
अब पतरस जो है वो हैरान है एक्चुअली, तो अमेज्ड है, लेकिन यीशु ने क्या पतरस से कहा कि पतरस को जवाब दिया कि पतरस खुदा पर ईमान रखो। So that is okay. I mean, everybody every time says when you battle with something, you got to have faith in God, believe God, have faith in God. और ये बात ठीक है, ये बात बड़ी आम है कि जब कोई किसी भी ऐसी कुछ चल रही होती है परिस्थितियां या कुछ ऐसी बैटल का आलम, कुछ जंग बीच में, कोई ऐसा रूहानी तौर पे हमारी रूह के अंदर होता है, तो हम लोगों को कहते हैं कि भाई खुदा पे ईमान रखो। And many of us are frustrated because we don't know how to have faith in God. People would say, you have faith in God, but how? और बहुत सारे लोग जो हम हमें से इस चीज के लिए भी वो स्ट्रगल में भी कर रहे होते हैं कि कैसे ईमान, वो कैसे खुदा पे ईमान रखा जाए, वो उनको समझ नहीं आ रही होती इस चीज की। Okay, I cannot see God. मैं खुदा को देख नहीं सकता। Has anyone here seen God before? क्या आप में से किसी ने खुदा को देखा? I would love to meet you actually. मुझे बड़ी खुशी होगी आपसे मिलके अगर आप में से किसी ने खुदा को देखा। Okay, so we agree no one here has seen God. लिहाजा हम इस बात पे तो पहुंच गए कि एग्री कर रहे हैं कि हमने में से किसी ने खुदा को देखा नहीं अपनी आंखों से। Has anyone heard the voice of God? क्या आप में से किसी ने खुदा की आवाज को सुना? Oh yes, 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 yes. in our I spirit have. always. Yeah, I've heard the voice of God. Has everyone heard the voice of God as I am speaking to you audibly? Sorry, Pastor. Has anyone heard the voice of God audibly? क्या आप में से किसी ने खुदा की आवाज को, जैसे हम अभी आप मेरी आवाज या पास्टर की आवाज सुन रहे हैं, एक आपको ऑडिबल आ रही है कान के अंदर, जिस्म के कान के अंदर, क्या इस तरह से आपने खुदा की आवाज को सुना कभी? Anyone? आप में से कोई भी ऐसा हो? Okay. Now, the question here is, how can I have faith in somebody I don't see, I don't hear? अब सवाल यहाँ पे ये उठ खड़ा होता है कि मैं उस शख्स पे कैसे उस हस्ती पे ईमान लेके आऊं या यकीन करूं जिसको मैंने कभी देखा नहीं, जिसको मैंने कभी सुना ही नहीं है। So many of you will answer, you have to believe. और बहुत दफा बहुत सारे लोग इसका जवाब इस तरह कहेंगे, नहीं आपको यकीन करना है, बस नहीं भी देखा सुना नहीं, लेकिन यकीन करना है। How can I believe if I don't have faith? कैसे यकीन भी कैसे करें जब वो बन ही नहीं, बात अंदर से उठ ही नहीं रहा, ईमान निकल ही नहीं रहा, क्योंकि देखा नहीं सुना नहीं। Okay, these are the questions that many people ask. और ये वो सवाल है जो बहुत सारे लोग पूछते हैं। Now let me answer that to you. मैं आपको इसका जवाब देता हूँ। First of all, Jesus, he saw a fig tree from afar. पहली जो बात, यीशु ने जो अंजीर का दरख्त था उसको दूर से देखा था। And that tree had leaves. They could see it from afar. और जब दूर से देखा था उस दरख्त को, तो उसके अंदर बहुत सारे हरे भरे पत्ते थे। When Jesus came to the tree, he found that there was no figs or fruit on the tree, and Jesus was also hungry. अब जब यीशु करीब आ गए तो उस दरख्त के अंदर फल नहीं था अंजीर का, जो कि होना चाहिए था। अब उधर से दूसरी बात है कि यीशु को भूख भी लगी हुई थी। So Jesus cursed the tree. अब यीशु ने उस दरख्त के ऊपर लानत भेजी। Amen. And the Bible says, the next verse, it was not the season for the fruit to grow. अब अगली आयत जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है कि वो तो मौसम ही नहीं था फल लाने का। So it's not the tree's fault. अब ये जो ट्री का तो कोई कसूर नहीं, उस दरख्त का तो कोई कसूर नहीं अगर उसके अंदर फल नहीं है, क्योंकि मौसम ही नहीं है। But it is the tree's fault, in fact. लेकिन यहाँ पे दरख्त ही का कसूर है। Because a fig tree produces its fruit first, then the leaves comes. क्योंकि जो अंजीर का दरख्त है, इसकी एक खासियत है, इसकी एक क्वालिटी है कि इसके अंदर पहले फल आता है और उसके बाद पत्ते आते हैं। So when you see the leaves, there must be fruit.
और जब हम दरख्त के पत्तों को देखते हैं, क्योंकि उसकी क्वालिटी है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर फल का होना जरूरी है। Specifically a fig tree. खास तौर पर ये अंजीर के दरख्त की बात हो रही है। All other trees, the leaves comes first and then the fruit come. बाकी जितने भी दरख्त हैं उन सब के अंदर पहले हमेशा पत्ते ही आते हैं और बाद में फल आता है, लेकिन इसमें उल्टा होता है, पहले फल आता है। Now, what Jesus was saying to us here in this fig tree story, अब यीशु हमें क्या बता रहे हैं, बताना चाहते हैं इस अंजीर के दरख्त की कहानी के अंदर से। today many Christians around the world, many children of God, आज बहुत सारे मसीही लोग, बहुत सारे खुदा के बेटे बेटियां have got a lot of leaves in their lives, but they have no fruit. उनकी जिंदगी में बहुत सारे दरख्त है, के पत्ते हैं, उनके दरख्त इंसान को दरख्तों से शबीह दी गई, उनके अंदर बहुत सारे हरे भरे दरख्त हैं, वो पत्ते हैं, लेकिन उनके अंदर फल नहीं है। On Sunday they say hallelujah, praise God, and they worship God. इतवार को तो वो प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वर्शिप करते हैं। They speak to their brothers and sisters, oh, God is good, brother. और Oh, my sister, God is very good. अपने बहन भाइयों से हाथ उठा उठा के बोलते हैं, ओ खुदा भला है, खुदा बहुत अच्छा है, खुदा भला है। They like to pray. और उनको पसंद है वो दुआ भी करें। Monday comes जब मंडे आता है, and they live like a devil. सॉरी They live like a devil. और वो इब्लीस की तरह, शैतान की तरह जीना शुरू कर देते हैं मंडे को। Using bad words, lying, stealing, all those negative things they start doing. हर तरह के बुरे अल्फाज, गाली गलोच, चोरी, लड़ाई, झगड़ा, सब कुछ जो कुछ बन पाता सब कुछ करते हैं। Sunday comes. फिर से इतवार आता है, Hallelujah. हालेलुया, फिर से हालेलुया, Praise God. प्रेज गॉड, हालेलुया, होली, Oh प्रेज Lord, I गॉड। worship you, Lord. फिर से Oh, वही I काम worship शुरू हो you. जाता है जो पिछले संडे किया था। Monday comes, फिर से मंडे आता है, they live like the devil again. फिर से शैतान की तरह जीना शुरू। You see, we must produce fruit in our life. याद रखो, हमें अपनी जिंदगी में फल पैदा करने हैं। Leaves is all stands for gimmicks, stands for mask, that you are a person that you are not actually, stands for wrongdoing, stands for a lot of things that you do behind people's back or whatever, all negative. लाजिम है कि हम फल लेके आए, फल रखें, ना कि हम अपने ऊपर एक मास्क चढ़ा के रखें कि हम लोगों के सामने कुछ और है, कुछ और दिखा रहे हैं, कुछ और अपना आप, हमें वो हमारा एक दूसरा रूप देख रहे हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही है। Gossiping. और जो चुगलीखोरी होती है, एक दूसरे की चुगली करना, Judging. और फिर एक दूसरे को निंदा करना, एक दूसरे के ऐब निकालना, उंगली रखना, Talk negative about people. सब कुछ दूसरों के बारे में गलत मनफी बातें करनी, गलत बयानी करनी, Lying to your husband, lying to your wife, lying to your boss. अपने बीवी के साथ, अपने शोहर के साथ झूठ बोलना, अपने बॉस के साथ जहाँ जॉब करते हैं उसके साथ झूठ बोलना, These are all leaves. ये सारे लीव्स हैं। Now, if the fruit was not there, we have to go now to Galatians chapter number 5 to see what is the fruit that we need in our life. अगर दरख्त के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं है, तो हम गलातियों के खत में अगर जाएंगे तो 5वें बाब के अंदर फलों। And if you go to Galatians chapter number 5, हम गलातियों 5 बाब के अंदर देखेंगे, उसकी 22 आयत से, and verse number 22. 22 आयत हम देख रहे हैं, गलातियों 5 की 22। But the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such, there's no law. Verse 22 and 23.
आप 22 और 23 आयत देखिए, गलतियों 5वां बाब 22-23 में उर्दू में पढ़ रही हूँ, आप हिंदी में देखिए क्योंकि डिफरेंट वर्ड्स होंगे उर्दू में और आपके हिंदी में शायद डिफरेंट मीनिंग एक ही होंगे। 22 में लिखे मगर रूह का फल लिखा है मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिलम, परहेजगारी है। ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। Now let's look at the leaves. Let's look at the leaves. Verse 19. अभी हम पत्तों को देखते हैं जो कि 19वीं इसी चैप्टर की गलतियों 5 बाब 19 आयत से लेके आप 21 आयत तक पहले जो 3 आयत उसके अंदर देखेंगे, वहां पे पत्तों की बात हो रही है। हम पत्तों को भी देखते हैं साथ ही। Now the works of the flesh are evident, which are adultery, fornication, uncleanness, lewdness, adultery, sorcery, hatred, contention, jealousies, outburst of wrath, selfish ambition, dissensions, heresy, envy, murders, drunkenness. हम देख रहे हैं गलती 5 बाब 19 आयत से, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी हरामकारी, नापाकी, शहवत परस्ती, बुत परस्ती, जादूगरी, अदावते, झगड़ा, हसद, गुस्सा, तफरके, जुदाइयां, बिद्दते, बुगस, नशाबाजी, नाच रंग और इनकी मानद। इनकी बाबत तुम्हें पहले से कह देता हूँ, जैसा कि पेशतर जता चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले खुदा की बादशाही के वारिस ना होंगे। These are the leaves. Now, many people in their lives have leaves. They look beautiful. They look honorable. They look good. And all that. They look like a healthy tree. बहुत सारे लोग जो हैं वो इन पत्तों के साथ भरे होते हैं और बाहर से बड़े खूबसूरत दिखते हैं, हरे भरे और घने से दरख्त पत्तों के साथ, और ये लेकिन इन पत्तों के साथ वो घने दिख रहे होते हैं और हेल्दी, ऐसे लगता है वो सेहतमंद दरख्त है जैसे। But there's no fruit in their life. लेकिन उनके अंदर फल नहीं है। You see, you will be cast out. God does not accept a person like that. इस तरह के शख्स को खुदा पसंद नहीं करता और इस तरह के शख्स बादशाही से बाहर रह जाएंगे। So now the question is, अब सवाल ये क्या उठता है यहाँ पे, how do I get fruit in my life? अब मैंने अपनी जिंदगी के अंदर फल कैसे लेके आना है? The only way that you can get fruit of the Holy Spirit into your life is the following. पाक रूह का फल हमारी जिंदगी में आ जाए, वो सिर्फ उसका एक ही तरीका है और वो तरीका ये है। Now, before we start, before I give you the answer, if you go to a tree that has fruit, let's take, for instance, an apple. इससे पहले कि मैं जवाब दूं, तो मैं आपको एक थोड़ी सी मतलब बात आपको बताऊंगा कि मान लें कि अगर एक दरख्त ऐसा जो फल देता है, मिसाल के तौर पे अगर आप सेब के दरख्त की बात करते हैं, सेब का दरख्त जो कि सेब का फल देता है, and the apple comes out, it is more like this, just starting to grow. जब सेब का फल आता है दरख्त के ऊपर तो वो छोटा सा फल होता है शुरू में, and before that apple there's a beautiful flower. और एक्चुअली वो फल आने से पहले, इससे पहले कि वो छोटा सा सेब बने, उससे पहले वो एक फूल होता है सिर्फ। The flower falls and then a little apple is there. और वो जो फूल होता है वो थोड़ी देर के बाद पीछे से जब फल बनना शुरू होता है, फल आ रहा होता है, तो फूल आगे से गिर जाता है और पीछे से फल बनते बनते छोटा सा फल निकल आता है। So if you take that apple and you take it off the tree and eat, how will it taste? और अगर आप उस दरख्त से उस फल को, उस सेब के फल को छोटे को उतार के खा ले तो आपको कैसा टेस्ट उसका लगेगा? You will throw it out of your mouth. Pleasant, yeah, it won't be pleasant. Definite वो इतना अच्छा नहीं होगा क्योंकि वो पका नहीं है, वो फल पूरा बना नहीं है, तो वो या कड़वा होगा, कुछ भी होगा, तो हम उसको मुंह से निकाल के फेंक देंगे। But if the apple grows from that to that, and it's still green, लेकिन अगर वो ही सेब जो है वो इतने से छोटे से सेब से थोड़ा बड़ा होके इतना हो जाए, लेकिन अभी भी वो हरा ही हो, यानी कि भी पूरा सेब बना ना हो, पका ना हो, still you cannot eat. अभी भी आप उसको खा नहीं सकते। You have to wait till the apple is fully grown and it's got a nice red color and
all that आपको before you get it. इंतजार करना है जब तक कि वो एप्पल जो है, फल जब पूरा बड़ा हो जाए, पूरा फल बन जाए और पक जाए और पूरा रेड हो जाए, जब तक मतलब पक जाए, बेशक वो हरा भी होता है सेब, लेकिन जब तक वो पक ना जाए आपको वेट करना होता है। This is the same with the fruit of the Holy Spirit. और पाक रूह के फल के साथ भी बिल्कुल ऐसे ही है। With many of the fruit of the Holy Spirit, you will battle first. बहुत सारे जो स्टार्ट की जो हमारी जिंदगी होती है उसमें हम जो रूह का फल होता है उसके साथ हमारी एक जंग सी चल रही होती है कि हम कैसे ये फल जो हमारे अंदर बढ़े और कैसे ये पके और कैसे ये फल आए। No person overnight is fully patient, fully full of love, fully full of kindness. No. देखिए कोई भी शख्स यीशु में एकदम एक रात आए तो अगले ही रात, उसी रातों रात ऐसे टक टक ऐसे करके तो एकदम से उसमें तहम्मुल नहीं आ जाता, सब्र नहीं आ जाता, मोहब्बत नहीं आ जाती, दूसरों वाले भी मोहब्बत करना है, सब कुछ ये एक पटक पटक करके नहीं सब कुछ हो जाता। We grow in it. हम उसमें बढ़ते हैं आहिस्ता आहिस्ता। And God helps us. और खुदा हमारी मदद करते हैं उसमें। You know, let me tell you one story. मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा। I was a man of little patience. मैं एक ऐसा आदमी इंसान था जिसके अंदर इतना सा सिर्फ तहम्मुल सब्र था, मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं थी, इतनी सी बर्दाश्त थी बस। I didn't have patience, really. मेरे अंदर बर्दाश्त बिल्कुल भी नहीं थी। I prayed God, please God. मैंने खुदा से दुआ, please God, give me more patience. मैंने खुदा से दुआ की, प्लीज प्लीज खुदा बाप आप मुझे सब्र दो, खुदा बाप आप मुझे तहम्मुल दो, खुदा बाप आप मुझे बर्दाश्त दो। Have you prayed that? Yes, many times. क्या आप लोगों ने कभी ऐसी कोई दुआ की है कि खुदा आपको कुछ ऐसी चीज जो आपकी फील करते हैं आपके अंदर नहीं है, तो आपने कभी दुआ की है, मांगी आपने खुदा से, खुदा आप मेरे अंदर ये डालो, मेरे अंदर नहीं है? You should stop asking God for more patience. No, I'm not asking for patience. I'm asking for some other things which I need. It's not about only patience. But let's focus on patience now. Okay. पास्टर जी मुझे कह रहे हैं क्योंकि जब उन्होंने पेशेंट का कहा, तहम्मुल का, बर्दाश्त का, तो उन्होंने मैंने कहा कि हाँ मैं की करती, तो वो मुझे कह रहे हैं कि आप इसको कहना बंद कर दो क्योंकि आपको और नहीं चाहिए। उनको लगता है we ask God, help us grow in our patience, God. अभी हमने खुदा से दुआ ये करनी है कि खुदा आप हमारी इस बर्दाश्त में और आगे बढ़ने के लिए हमें सहायता करें, मदद करें कि हमारी ये जो बर्दाश्त और बढ़ जाए। So I ask God, please God, help me that I can grow in this patience. Help me so I can be a man of patience because I have only fruit so big with patience. Already serving God many years. क्योंकि बहुत साल पहले मेरे अंदर इतनी सी सिर्फ बर्दाश्त थी और मैंने खुदा से दुआ की, बार बार इस चीज के लिए खुदा से रिक्वेस्ट की, दुआ की कि खुदा मेरी मदद करो कि मैं इस बर्दाश्त मेरी और बढ़ जाए, आप मेरी हेल्प करो। So one day, shortly after that, I was standing in a long queue in Johannesburg in a bank waiting for my turn. और जोहानिसबर्ग वो जगह का नाम है, वहां पे बैंक था, वहां पे ये एक लंबी कतार में खड़े थे, जो बहुत लंबी कतार थी। Long queue. Long queue. और वो बहुत ही लंबी कतार थी, बहुत ज्यादा लोग थे वहां पे। After 45 minutes plus minus, at last I was second from front. तकरीबन 45 मिनट इंतजार करने के बाद वहां उसमें कतार में लाइन अप लगने के बाद मेरी बारी आई। When all of a sudden, और एकदम से somebody came right in front of me. किसी ने मेरे सामने लिखना शुरू किया। Somebody pushed in front of me. कोई मेरे आगे से मुझे पुश करके मेरे आगे आ गया। This person came from behind and he came and stand right in front of me. और वो शख्स जब बहुत पीछे था, पीछे से वो आगे आया और आके मेरे आगे आके तो लिखना शुरू हो गया। Already I'm waiting 45 minutes and this person just come and stand in front of me. और मैं
पिछले 45 मिनट से वेट कर रहा हूं, इंतजार करो, अब ये शख्स पीछे से खड़ा और आगे एकदम भाग के आके मेरी जब बारी आ गई तो मेरे सामने आके खड़ा हो गया। I can feel how the fire is coming up. और मैं उस अंदर जो आग लग चुकी थी मैं उसको महसूस कर सकता था। Then I remember, और मुझे याद आ गया God help me with patience. कि मैंने खुदा से दुआ की थी, खुदा बाप आप मेरी मदद करो कि मैं इस बर्दाश्त में मैं बढ़ सकूं और बढ़ूं, बर्दाश्त मेरी और बढ़ जाए। So it was God sending that man in front of me. और वो आदमी खुदा ने भेजा था मेरे सामने। Come on. I pat him on the shoulder. और खुदा I ने pat him on the shoulder from behind. खुदा ने मेरे कंधे के ऊपर मुझे टैप करके हाथ से थपकी देके कहा। When he turned around, he looked at me like, what do you want? जब इन्होंने पीछे मुड़ के देखा तो उसने पूछा क्या चाहिए आपको? I said to him like this, I'm so happy that you came in front of me. Can I talk to you about Jesus? और मैंने उस शख्स से कहा कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे सामने आके खड़े हुए हैं, क्योंकि मैं आपसे यीशु की बात करना चाहता हूँ। He went and stand at the back of the row again. जब उसने सुना तो वो फिर से पीछे चला गया और कितार के जहाँ लाइन अप था वो वहां अपनी जगह फिर से पीछे चला गया। You see, God will help you, but he will create situations so that you, the emphasis on you to grow in your fruit. The emphasis is on you and me. याद रखें खुदा हमारे अंदर फलों को पैदा करना चाहता है, और जब खुदा हमारे अंदर फलों को पैदा करना चाहता है तो खुदा बाप ऐसे हालात को पैदा करेंगे जिन हालात के अंदर हमारे अंदर से वो जो फल है वो बढ़ने शुरू हो जाए और हम उनके अंदर और बढ़ोतरी होती जाए हमारी रूहानी तौर पे। और खुदा का फोकस जो है उन हालात की तरफ से दूसरे इंसानों की बल्कि आपके ऊपर होता है, सिर्फ और सिर्फ मेरे और आपके ऊपर, क्योंकि वो हमारे अंदर वो फल देखना और उन फलों को बढ़ते हुए देखना चाहता है, इसलिए वो ऐसे हालात पैदा करेगा हमारे से। When you study God's word, when you read God's word, your fruit is starting to grow. जब आप खुदा के कलाम को पढ़ेंगे, जब आप खुदा के कलाम की बैठ के पर्सनल खुदा के साथ एक रिश्ता बना के उसको पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, उसके ऊपर गौर और खौस ध्यान देंगे, तो तब ये फल जो और बढ़ने शुरू हो जाएंगे। Amen. आमीन। After that, Jesus went into the temple and cleansed the temple. और उसके बाद हम देखते हैं कि यीशु हैकल में गए हैं और उन्होंने हैकल की सफाई की। And he said these words, my house shall be called the house of prayer. और उन्होंने वहां पे एक बात कही कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा। One of the most important things in your life is your prayer life. क्योंकि जो सबसे जरूरी बात हमारी जिंदगी के अंदर है, उन बहुत सारी बातों के साथ सबसे जरूरी बात दुआ या जिंदगी रखना, खुदा के साथ दुआ के रिश्ते के अंदर बने रहना। Your personal communication with God. हमारी जाती तौर पे जो पर्सनल बातचीत होती है खुदा के साथ एक रिश्ते के अंदर बंध के, वो होनी बहुत जरूरी है खुदा के साथ। Amen. Amen. So then God said to Peter, after Peter said, wow, the tree is dried up. Then Jesus said to Peter, have faith in God. और जब हम देखते हैं पतरस ने ये कहा कि यीशु, ऐ उस्ताद, ये तो दरख्त जो अंजीर का दरख्त है जिसपे आपने लानत की थी ये तो सूख गया है, तो यीशु ने उससे क्या कहा कि पतरस खुदा पर ईमान रखो। You see, God wants to enjoy you and I. खुदा मेरे और आपके अंदर बहुत दिलचस्पी रखते हैं और खुदा हमें उस रिश्ते को भरपूरी के साथ चाहते हैं कि हम वो हमारे अंदर हमें वो एंजॉय करना चाहते हैं। He wants to taste our fruit. खुदा हमारे अंदर जो फल जो रूह कुदस से पैदा हो रहे हैं उनको चखना चाहते हैं। Now let's look at this. First the tree came. God is saying, work on your fruit. Galatians 5.
पहली बात हम देख रहे हैं कि दरख्त की बात देख रहे हैं और उस दरख्त के साथ हम फलों की बात देख रहे हैं। तो गलतियों 5 बात के अंदर देख रहे हैं, खुदा कह रहे हैं कि अपने जो रूह का फल है, रूह के फल के ऊपर हमने काम करना है, काश्तकारी करनी है। How do I work on my fruit? I study the word of God. I have an active prayer life. और ये देखिए कल्टीवेशन की बात हो रही है कि हमने उस फल को कैसे कल्टीवेट करना है। हमने कलाम को पढ़ना है, खुदा के कलाम को पढ़ना है। हमने दुआया जिंदगी रखनी है, जैसे ज़बूर 1 के अंदर लिखा है ना कि वो दरख्त जो पानी की नदियों के पास लगाया जाता है। तो हमने इस तरह पानी की नदी जैसे हमने कलाम को पढ़ना है, हमने दुआया जिंदगी के अंदर मजबूत होना है। This is how your faith in God starts to grow. और यही एक ये चीज है कि जिससे हमारा ईमान जो है वो और पुख्ता होना शुरू हो जाएगा। Now the Bible says here, verse 23, for sure I say to you, whoever say to this mountain, be removed and cast into the sea, and does not doubt in his heart, but believe that those things he say will be done, he will have whatever he says. 23वीं आयत देख रहे हैं, यीशु ने क्या कहा था? यीशु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने दिल में शक ना करे बल्कि यकीन करे कि जो कहता है वो हो जाएगा, तो उसके लिए वो ही होगा। So I want to ask you, has anyone doubted here before? अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या आप में से कभी किसी ने पहले कभी शक किया? कुछ कहने के बाद, खुदा से बात करने के बाद या कुछ मांगने के बाद कभी कुछ शक किया कभी? I think most of us, sometime or another, has had doubts in our heart about certain things. मेरा ख्याल है कि हम सब ने कहीं ना कहीं अपने जिंदगी में ये मरहले आए होंगे, ये सिचुएशन बनी होगी कि हमने अपने दिल में शक किया होगा कुछ मांगने के बाद। Now, as you can see here, the Bible says, doubt in his heart. अब यहाँ पे देखिए एक बात कलाम में लिखी है कि शक अपने दिल में, वो दिल में शक जो उसकी बात हो रही है, Not doubt in his mind. बात ज़हन की नहीं हो रही कि ज़हन में शक की बात हो रही है, बात हो रही है कि शक दिल में अगर शक किया हो। Amen. Doubt will come to your mind. You cannot help that. It will come. देखिए जो शक है वो हमारे दिल में आता है, वो हमारे ज़हन में नहीं आता। But you should not doubt in your heart. याद रखें, कभी भी अपने दिल में शक नहीं लेके आना। और मैं तो समझती दिल जब दे ही दिया यीशु को, दिल तो उसका हो गया, तो आप फिर शक कैसा? Now, if we look at this portion of scripture here, अब हम अगर इस हिस्से को, कलाम के हिस्से को पढ़ेंगे, नतीश भाई, हम अब दुआएं की रिक्वेस्ट के बाद मिलेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। hello? Yes, Pastor. Okay. We see there in verse 24, therefore I say to you, whoever things you ask when you pray, believe that you receive them and you will have them. 24 आयत के अंदर क्या लिखा है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो यकीन करो कि तुमको मिल गया और वो तुमको मिल जाएगा। Okay, listen to me carefully now. आप बड़े ध्यान से मेरी बात को सुने। Many times we ask God for many things. We think we believe him and we really trust in him perhaps, but we don't receive. बहुत दफा हम खुदा को बहुत सारी चीजें मांगते हैं क्योंकि हम यकीन करते हैं, हमें यकीन होता है कि वो देगा, और हम शक बिल्कुल भी नहीं कर रहे, लेकिन फिर भी वो हमें मिल नहीं रही होती। So yes, the answer. Yes, the answer. अब इसका जवाब क्या होएगा? इसका मतलब, सॉरी पास्टर, आई एम क्रैकिंग योर सम वॉइस। Sorry, it's mine not coming through clearly. No, actually I'm getting everything. There is something is. Can you go again with this verse, please? What did you say? Okay. All right. Now, many times we ask God for things, but we don't receive it what we ask God, right? बहुत दफा हम खुदा से कुछ चीजें मांगते हैं, लेकिन हमें वो मिलती नहीं है जो हमने मांगी होती हैं। I mean, be honest. Everything that you've asked God, did you always receive? बहुत ही ईमानदारी से बताइएगा कि जो कुछ भी कभी आपने खुदा से मांगा है, जो कुछ भी, क्या आपको सब कुछ मिल गया? No. नहीं। Not all. I mean, yes, God gives many, but not all, right?
हाँ देखिए, हो सकता है खुदा ने दिया हो, लेकिन सब कुछ नहीं दिया कि जो कुछ भी मांगा सब कुछ ही दे दिया है, ऐसा नहीं Now, है। if you take, if you take verse 23 and 24, it says the following. अगर आप 23 और 24 आयत को देखें तो उसमें क्या लिखा हुआ? The Holy Spirit works in my heart. देखिए ऐसे है कि पाक रूह हमारे दिल के अंदर काम करता है, And if I ask according to the leading of the Holy Spirit, और अगर हम पाक रूह की हदायत के अंदर, पाक रूह जो हमारा मददगार है, अगर हम उसकी हदायत के अंदर उसको बोलेंगे, then I will receive what I ask. और उसके बाद हमें वो मिलेगा। Amen. आमीन। You see, many times we ask outside of the will of the Holy Spirit and we will not get. क्योंकि बहुत सारी दफा हम क्या कहते हैं, हम जो कुछ मांग रहे थे, हम रूल कुद्दस की मर्जी से बाहर जाके वो मांग रहे होते हैं, हम रूल कुद्दस के साथ एक साझेदारी के अंदर आके नहीं मांग रहे थे, इसलिए वो हमें मिल ही नहीं रहा होता। Amen. आमीन। So let's recap quickly. हम Work on सारी चीजों को दोबारा से एक दफा रिकैप करते हैं। work on the fruit of the Holy Spirit. सबसे पहली बात कि हमने जो रूल कुद्दस का फल है हमारी जिंदगी के अंदर जो होना By चाहिए, studying the Word of God उसके लिए मुझे कलाम को पढ़ना है, and your prayer life. और उसके लिए मेरी दुआ या जिंदगी मजबूत होनी चाहिए। Then, whatever the Holy Spirit puts in my heart when I pray according to that. And then I will receive everything I ask. और उसके बाद जो कुछ रूल कुद्दस मेरे अंदर से दुआ करवाते हैं, या रूल कुद्दस की हदायत से मैं दुआ करती हूँ, मैंने उसी के ऊपर यकीन करना, और वो वाकई ही होएगा, क्योंकि हम रूल कुद्दस जब हमारे साथ बातें करें, हम उसके साथ साझेदारी के अंदर, रफाकत शराकत के अंदर होके हम वो दुआ जब करेंगे तो वो होएगा। But there's one more reason, and I finish with this. There's one more reason that your prayer will not be answered, and that is in verse 25. और यहाँ पे एक और वजह है जिसमें दुआ का आंसर जवाब नहीं मिलता, और वो हमें मिलता नहीं है, और वो 25वीं आयत के अंदर है, जिसको हम देखेंगे। If you need to forgive somebody, you must stop your prayer and go and forgive that person before you ask God anything. और वो क्या चीज है, जब हम दुआ कर रहे हैं और कोई ऐसा शख्स जिसके साथ हमारी रंजिश है या हमारे दिल में खटास है, तो हमने दुआ को छोड़े, पहले उस शख्स के साथ हम अपने आप को, अपने रिश्ते को बहाल करें, उसके साथ अपने वो दोबारा से सब कुछ ठीक करें, और बाद में हम आके दुआ करें, हम उसको मन से माफ करें। अगर हमें खुद को माफी मांगने की जरूरत है, हम खुद भी माफी मांगे। Verse 26. But if you do not forgive, neither will your Father in heaven forgive your trespasses. दुआओं के जवाब ना आने का एक बहुत बड़ी रुकावट है ये। 26 आयत हम देख रहे हैं, क्या लिखा है, अगर तुम माफ ना करोगे तो तुम्हारा बाप जो आसमान पर है तुम्हारे गुनाह भी माफ ना करेगा। Amen. आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अगर आपकी बहुत सारी देर से दुआएं रुकी हुई हैं और आप उस चीज के लिए दुआएं मांग रहे हैं, शायद हमें थोड़ा सा अभी टटोलने की जरूरत है, या तो फिर उसमें खुदा की मर्जी कुछ और है। जिस तरीके से हम मांग रहे हैं, खुदा किसी और तरीके से वो देने चाहते हैं। हम थोड़ा मांगते हैं कई दफा, खुदा हमें बहुत ज्यादा देना चाहते हैं, लेकिन हम वो थोड़े पे रट्टा लगा के बैठे रहते हैं। शायद हम अपने तरीके से खुदा को डिक्टेट करवा के मांग रहे थे कि ऐसे कर दो, ऐसे करो, लेकिन खुदा हमें और तरीके से देना चाह रहा है। शायद हम किसी इंसान पे ध्यान लगा के बैठे होते कि शायद इंसान हमें देगा, वो मेरे लिए करेगा, लेकिन खुदा चाहता है हम उसकी तरफ निगाहें लगा के बैठे। शायद कुछ और भी, लेकिन शायद एक वजह ये भी हो सकती है जो अभी हमने पढ़ी, कि हमने किसी को माफ नहीं किया, हमारे दिल में खटास है, रंजिश है, रिश्ते ठीक नहीं है। हम इस चीज को भी आज लेके चले कि अगर हमें मिल नहीं रहा तो कहीं ये वजह तो नहीं है। और आप याद रखें कि खुदा जो है, खुदा भला खुदा है, खुदा हर एक से मोहब्बत रखता है, और खुदा ने हमारे लिए अच्छे प्लानिंग, अच्छे मंसूबे रखे हैं। उसके ख्यालात हमारे ख्यालात जैसे नहीं है, उसके ख्यालात बहुत बुलंद है, और ना ही उसकी राहें हमारी राहें हैं। वो अपने तरीके से काम करता है। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं आज के खूबसूरत कलाम के लिए, शुक्रगुजारी करते हैं खुदा के खादम के लिए, जिनके वसीला से हमने बहुत सारी बातों को आज फिर से दोहराया। पाक रूह ने हमें फिर से ये बातें रिमाइंड करवाई, और ये वो बातें जो हम शायद जूम को 1.5 साल हो गया, हम 1.5 साल से ये रोज रोज ही सुनते
हैं किसी न किसी तरीके से, कुछ ना कुछ बात हमें ये टच होती है। पिछले दिनों माफी पे भी जिक्र हुआ था, पिछले दिनों ये फलों पे भी जिक्र हुआ, फिर पिछले दिनों में रूह कुदस के हम जब साझेदारी के अंदर प्रेयर करते हैं, प्रेयर का आंसर आता है, इस पे भी जिक्र हुआ। कल खुदा की तरफ निगाह लगाने पे जिक्र हुआ। हर रोज जिक्र होता है। तो आए हम सब इस वक्त अपने अंदर टटोलें कि अगर हमारी दुआ का जवाब नहीं आ रहा तो वो बड़ा पहाड़ जो है, जो टलने की जरूरत है, जब यीशु ने कहा ये टल जाएगा पहाड़, तो वजह क्या है? कहीं हमारी बेतकादी, शक, या कोई हमने किसी को माफ ना किया, क्या वो पहाड़ तो नहीं है? क्या कोई और पहाड़ तो नहीं है? हम आज उस पाक रूह की कुदरत उस पहाड़ को हटने दें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। याद रखिए खुदा के मंसूबे भलाई के मंसूबे। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। मैं पास्टर अजय ही से रिक्वेस्ट करूंगी, पास्टर फेडरिक के लिए दुआ करें, हम सब के लिए, कदम के लिए ब्लेसिंग को मांगे। हमने जो कलाम आज फिर से हमें झंझोड़ के पाक ने रिमाइंडर दिया, आज हम उस पर अमल करके उठेंगे। हम यहाँ से ऐसे ना उठे, बल्कि हम इस चीज को आज जो दरखास्त है हम लेके उठेंगे, क्योंकि आज हमने इस पहाड़ को टल जाने के लिए कहना है। आज हमने पाक रूह की साझेदारी के अंदर जाके दुआ करनी है। लेट्स प्रे विद पास्टर अजय। आइए हम लोग प्रार्थना में जाएं।